Recording. So, good afternoon, everybody, and welcome to Cafe Meet and Collaborate session. This is the second one where we are having all creative people with us. I will say with me because Bhavika herself is also in the same field. So, Bhavika, you are equally qualified to be on the panel rather than being on the other side today. So, you choose kahan hona hai, Bhavika. You would like to be in the panel or on the other side of the panel? Other side, other side. Other I side, na I zyada, love to learn from so much talented people. yeah, zyada maza aata hai to be on the हाँ other हाँ side. एकदम और ज्योति जी ने इतना प्रिपेयर किया है तो फिर आई विल जस्ट हियर टुडे her. So we are really excited to hear the lovely journeys of all the four women who have created a niche for themselves in this vast world of creativeness, where you can start from anything and everything and reach wherever you wish to. So I will not be introducing them because that will not be justified. I would invite each panelist now to introduce themselves in their own creative way. So starting from Jyoti ji. Jyoti ji, welcome to the meet and collaborate session, and please, I will say Jyoti only. Yeah, please, please. So Jyoti, please introduce yourself. Okay, I'm Jyoti Agarwal, and as most of you all know, I'm a Mandala, Madhubani, and mostly all of these folk art artists. I wasn't always a folk art artist, or I wasn't always into this field. My journey began in '94, and I trained to be a fashion designer. After I graduated, I trained to be a fashion designer, and I had my own boutique in Delhi for 5 long years. And uske baad, as luck would have it, and I got married, and then we moved to London for some time. So when we came back, obviously, being in a Marwari family, and you had to have a child, and set up a house. And in 2008, we moved to Bangalore. So basically, as I stopped my boutique in 2000 until 2008 9, I was like totally free, very domestic. I was working in London, but that is like a different field altogether. So that doesn't really count. And then we came back to Bangalore in 2008. And my son's school, I got a call from my son's school to come and join them because I used to do a lot of props for his assemblies and for his class teachers. So one fine day, they were in desperate need of a teacher. So they just called me, and I joined them. So and then that was in 2014, and after that there has been no looking back. I mean, life has just looked beyond, far and beyond from there. And then during this lockdown, otherwise I've been teaching art and craft to all these students for almost 7 years now, and my range is usually second and third standard students, which I really love. And then once you got into that field, I started like experimenting with different stuff, and found my forte finally in the folk arts of India. So that is where I began my journey. And probably during the lockdown, because of help from good friends like Manisha ji and Kavita and everybody, and life has just taken a different turn. The online classes, and I've had online classes all over the world, and that's not exaggerating. So I have done UK, US, Qatar, and Nepal. So life has been good, and I'm enjoying every moment of it. And that's me. Wow. Jyoti ji are really bubbly. So moving on to Pooja now. Pooja, please introduce yourself and how you started. Yeah. Hello, everyone. I'm Pooja Bajaj. And as far as my memory goes, I've been passionate about art since my childhood days. So, starting with those simple drawings, sitting in class also and doing those doodling. So, I can't even place a year that this was the time I started. Jab se hosh sambhala, I was passionate about drawing. So, then it was sketching. Then I moved on to pastels. Then oil painting. I remember I made my first oil painting on canvas when I was like around 17 years old. And then a lot of oil paintings at that age for 4 5 years, and generally they're just gifted to family and friends.
Then I moved on to acrylic a few years back. I've also tried my hand with Tanjore painting and painted on pots, earthenware, ceramic, rice paper, even silk painting. So all these mediums I've tried. Even, clay modeling may, carved out those three-dimensional pieces of art. So that way I've always been passionate about art, and I've chosen my subjects from still life, nature, mythology, even human figures. So, but now, like Jyoti ji said, I'm also fascinated with mandalas and I wish to explore that further. So let's see how this journey takes me along. Wow. That's it. So mandalas are actually very, very interesting and also intricate. Yes, yes. And I think Ah. every age can take that up. Even a child. They take you to a place, Kavita, where nothing. Uh, I mean, when you're, especially when you're doing something like that, you are just transported to a different world altogether. हमको याद है जब हम लोग लास्ट बेंच पर बैठा करते थे तो वो पीछे जो हम लोग लास्ट पन्ने पर जो Last page. डिजाइन बनाया करते थे वही है, but मंडाला में मैक्सिमम वही डिजाइन्स को वो किया जाता है. वही है, थोड़ा सा बस more organized form में है, but that's it. Yes, So, very I nice. So even you give it a try now, Kavita. Exactly. Next venture, Kavita. After this session, definitely, because you all are going to inspire us to take up art as a profession and career. So I hope that after the session we all will be trying our hands on various kinds of art. So moving on to Manisha now. Manisha, introduce yourself. वैसे सब तुमको जानते हैं, but different Manisha today. Manisha Tibrewal, mom, blogger and entrepreneur. Yes. 3 साल से ये एक नया एडिशन मेरे बायो में हो गया, entrepreneur. And that too art related, And, after my marriage, मैंने हर फॉर्म का आर्ट सीखा, be it oil painting, stained glass, mural paintings, everything I did. And I have gifted them to all my relatives, friends everywhere. And my whole flat was, decorated with all my art pieces, wall hangings, show pieces, many things I used to do with experiments. My favorite job was कि जो एक आर्ट है उसको उसी तरीके से कभी प्रेजेंट मत करो, उसमें क्या आप ट्विस्ट कर सकते हो वैसे करके मुझे करना है. इट शुड लुक वेरी डिफरेंट. फिर जब 2008 में मैं शिफ्ट हो गई नए फ्लैट में, तो मेरे सारे पुरानी पेंटिंग्स को फ्लैट के साथ वही बंद कर दिया गया. एंड आई गॉट डिजर्टेड, कि मैंने इतनी सुंदर से सब चीजों को किया और यहाँ नया कुछ भी नहीं आया. देन आई फाउंड कि आर्ट की जो कीमत होती है वो सिर्फ आर्टिस्ट समझता है, या फिर जो खरीद के लाता है तब आप उसकी वैल्यू कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव पेड फॉर दैट. एंड देन 10 लॉन्ग ईयर्स आई वाज इनटू होम, सन, एवरीथिंग, सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ 2017 में जब मेरा बेटा सिद्धांत वो हॉस्टल चला गया, एंड अगेन आई हैड अ स्पेस फॉर माई सेल्फ. मैंने अपनी सेकेंड इनिंग खेलनी शुरू की कि अब मैं अपने साथ क्या कर सकती हूँ. पर 10 साल मैंने आर्ट के साथ एक गैप ले लिया था. तो जब आप फाइन पेंटिंग में 10 साल का गैप लेते हो तो ब्रश आपके साथ उतनी फ्रेंडली बिहेव नहीं करते, बिकॉज आप छोड़ चुके होते हो. बट कहीं ना कहीं वो आर्ट का कीड़ा था, तो मुझे जो करना था वो क्रिएटिव तरीके से ही करना था. एंड मैंने फिर से शुरू किया एंड ये श्योर किया कि मैं वो चीजें, चाहे प्लेटर बनाऊं, चाहे हैम्पर्स बनाऊं, चाहे मैं जो भी चीजें बनाऊं, वो ऐसे बनाऊं कि लोग अपने घर पे थोड़ा दिन रखें, यूजर फ्रेंडली हो और बजट के साथ हो. और मैं जैसे डेकोपाज किया, तो डेकोपाज को मैं प्लेटर्स में कन्वर्ट कर रही हूँ, मैं लैम्पशेड्स में कन्वर्ट कर रही हूँ, नॉट इन देयर एक्चुअल फॉर्म. इफ आई एम डूइंग एनीथिंग, अगर कैंडल्स लिया तो कैंडल पे फोटो कैंडल किया, मतलब हर चीज को थोड़ा ट्विस्ट के साथ कि वो थोड़ा नया हो. तो दैट इज हाउ नायशा स्टार्टेड, and I am entrepreneur now, and I'm enjoying this journey. Wow. And what about Suchi? But this is the worst thing that I can do. मेरे को अपने बारे में Introduction. actually. Manisha ji, you need to teach me this now. Any day. So basically, जैसे सब मेरे को जानते हैं, I am Suchi Agarwal and I am an interior designer. Basically, I've learned, I am a certified interior designer and a graphic designer. और creativity, actually मैं ना हमेशा से I was this किताबी कीड़ा, तो मुझे नहीं पता कि मेरे में creativity कब आई, बस आ गई suddenly. मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि तुमको पढ़ाई से पीछा छुड़ाना था इसलिए तुम घुसी creativity में, बट पता नहीं. एंड जहाँ तक
मतलब मैं एक्चुअली अगर एक्सप्लोर करूं, जैसे 2 फील्ड्स हैं जिसको मैं प्रोफेशनली कर रही हूँ, दैट इज इंटीरियर डिजाइनिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग. इंटीरियर डिजाइनिंग में अगेन एज एवरीवन नोज वी डिजाइन हाउसेज, वी डिजाइन ऑफिसेज, बहुत चीजें हैं. जैसे आई हैव डन मोंटेसरी, आई हैव डन प्लेग्राउंड्स, आई हैव डन टेरेस के ऊपर में पूरा एक क्रिकेट अरीना बनाया था मैंने एक जन के लिए, तो उसका एक अलग एक फील्ड है. अभी मैंने रिसेंटली सॉल्ट लेक में आई हैव डन अप अ मंदिर, पार्क में, सीजे पार्क में एक मंदिर बनाया मैंने. तो दैट वाज अगेन एक बहुत नई चीज थी मेरे लिए, बिकॉज आई नेवर डन दैट. घर में आई हैव डन अ लॉट्स ऑफ टेम्पल्स छोटे छोटे, बट दिस वाज अ प्रॉपर 600 स्क्वायर फीट का मंदिर. तो वो एक चीज है. एंड आई विल डेफिनेटली से कि अगर किसी को लगता है कि दे आर क्रिएटिव एंड दे लव टू डिजाइन देयर हाउसेज, सो दे शुड डेफिनेटली एक छोटा सिंपल एक साल का कोर्स है, इट्स अ डिप्लोमा कोर्स इंटीरियर डिजाइनिंग का, विच एवरीवन शुड टेक अप एंड उसको फिर करना चाहिए. आजकल इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटीरियर डेकोरेशन भी आता है. फिर उसके बाद है ना, इसमें बहुत सारी वैरायटी आ गई है, जो पहले जब व्हेन आई स्टडीड जब ये नहीं था. आप सिर्फ फैब्रिक्स का सजेशन देते हो एंड यू आर पेड फॉर इट, कि आप किस मटेरियल का फैब्रिक अपने सोफा पे लगाओ, या आपके इंटीरियर के संग में कौन सा कलर का सोफा एंड कौन सा कलर का डाइनिंग टेबल का चेयर अच्छा, ब्लाइंड Suchi, अच्छा लगेगा. you have a bad internet connection, I guess. अभी ठीक है. हाँ. अच्छा, mine is unstable. Sorry. Yeah, she was like, we can hear her. हाँ, okay. तो इंटीरियर डिजाइनिंग. अच्छा, फिर उसके बाद अभी एक बहुत रिसेंट में आ रहा है टेरेस. दैट इज बेसिकली लोग अपने टेरेसेस डिजाइन करते हैं. मतलब दे आर एवरीवन, स्पेशली लॉकडाउन में मेरे को 3-4 लोगों ने सिर्फ टेरेस के लिए बोला, बिकॉज अभी हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, हमारे घर की टेरेस भी इम्पोर्टेंट है. नहीं तो अभी तक हम घर पे टाइम ही स्पेंड नहीं करते थे. Correct. फिर उसके बाद होम ऑफिसेस, ये एक बहुत नया एक एवेन्यू मुझे भी मिला, जो लोगों ने मेरे को बोला कि वी नीड अ वर्किंग स्पेस इन आवर होम, बिकॉज अब बहुत से लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम पे शिफ्ट हो चुके हैं. तो बेसिकली इंटीरियर डिजाइनिंग अपने आप में एक अलग फील्ड है. इस लॉकडाउन में मैंने अपने लिए खुद के लिए एक फील्ड एक्सप्लोर की. आई हैड लर्नड ग्राफिक डिजाइनिंग. आई यूज्ड टू मेक फॉर फैमिली, जैसे पापा का विजिटिंग कार्ड बना दिया, भाई के लिए लेटर हेड डिजाइन कर दिया. देन माय फादर इज इनटू कैशियो बिजनेस, तो उनका जितना भी पैकेजिंग का काम था, दैट आई यूज्ड टू डिजाइन ऑल द पैकेट्स, ऑल द कार्टन्स, एवरीथिंग आई हैड डन. बट कभी भी मैंने उसे प्रोफेशनली नहीं किया था. कैफे में जुड़ने के बाद कविता ने मेरे को थोड़ा कैफे का काम दिया, जैसे न्यूज़लेटर डिजाइन करना, थोड़ा या नहीं, बोलो सारा. कैफे के लिए लोगो जैसे मैंने डिजाइन किया. राइटर्स क्लब का एक है वाई कैफे का, तो उसको करते करते फिर कविता से जब जान पहचान हुई, तो फिर ये समझ में आया कि हाँ, ग्राफिक डिजाइनिंग को भी प्रोफेशनली किया जा सकता है. आई मीन मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि किसी से बोलूं कि मैंने आपका विजिटिंग कार्ड डिजाइन किया तो मेरे को रुपए चाहिए. तो दैट थॉट वाज अ थिंग जो मेरे माइंड में आया. एंड देन उसके बाद जब मैं इस फील्ड में भी घुसी, तो आई फाउंड इट कि इसमें बहुत वैरायटी ऑप्शन अवेलेबल है. स्पेशली इंटीरियर डिजाइनिंग में आपको क्या, यू हैव टू गो टू द साइट, आपको मिस्त्रियों के संग माथापच्ची है, ये है वो है. दिस इज मच सिंपलर. आप अपने पास एक लैपटॉप होना चाहिए और आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एंड यू आर डन. एंड यू हैव अ वाइड वैरायटी. जैसे कविता, आई केम अक्रॉस विद मनीषा जी ऑल्सो, सो आई डिड अ मैगजीन फॉर मनीषा जी. तो ये सब चीजें मेरे लिए बहुत डिफरेंट थी एंड बहुत नई थी. बट आई वुड से फॉर विमेन हु आर क्रिएटिव, 1-2 सॉफ्टवेयर सीखना है. दैट इज फोटोशॉप सीख लिया, कोरेल ड्रॉ सीख लिया, पावर पॉइंट थोड़ा बहुत आना चाहिए. अगर आपको थोड़ा एनिमेशन में जाना चाहिए, तो एक अडोब का ही आफ्टर इफेक्ट्स बोल के सॉफ्टवेयर है. 4-5 सॉफ्टवेयर हैं जो आप चाहोगे तो 3-4 महीना, मैक्सिमम 6 मंथ्स में सीख सकते हैं. एंड देन देर इज अ ह्यूज स्कोप इन दिस लाइन, बिकॉज स्पेशली आफ्टर कोविड हर आदमी चाहता है कि वो सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को, अपने काम को वो एडवर्टाइज कर. एंड उस एडवर्टाइजमेंट के लिए उसे एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए. करेक्ट, एब्सोल्युटली. इसमें फिर नेक्स्ट जैसे मैंने एक्सप्लोर किया कि सिर्फ सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट्स नहीं, प्रिंटिंग के लिए, लाइक मैंने एक मोंटेसरी इंटीरियर किया था मैंने बिफोर लॉकडाउन. अब उसी मोंटेसरी के ओनर ने जस्ट मतलब मुझे कांटेक्ट किया कि मेरे को होर्डिंग्स एंड बैनर्स लगवाने हैं इन द एरिया, तो अब वो भी डिजाइन कर दो. तो अब वो है कि वो एक कंप्लीट पैकेज, आप कोई कमर्शियल स्पेस डिजाइन करते हो, संग में एडिशनली आपने उसका विजिटिंग कार्ड भी कर दिया, ब्रोशर भी कर दिया, पैम्फलेट्स भी कर दिए. So there's a huge variety in this line, which definitely one should explore. Definitely, yes. We Uh, also have Bhavika, Bhavika actually, from Bhavika, the. I think
you are doing it much more professionally than I do. So please throw some light on this. Nee, it's not about doing more professionally or less professionally, Suchi. Creativity is a line where everybody has to be different. You cannot, two people cannot be similar. नहीं तो फिर वो creative नहीं हुआ. एक्चुअली ये क्रिएटिव पीपल का सबसे बड़ा चैलेंज होता है, एक Be जैसे different. पेंटिंग भी रहो और आपको अपने आप को यूनिकनेस जो आपकी है, आपकी अपने फील्ड में आप कैसे यूनिक हो सकते हो, वो आपको काम दिलाता है, बजाय आप एक जैसा काम करो. Yes, Actually, पता है absolutely. कि क्लाइंट भी ये बोलता है कुछ अलग होना चाहिए. अलग होना चाहिए. दिस इज द ट्रेड लाइन ऑफ एवरी क्लाइंट इन एवरी क्रिएटिव फील्ड. कुछ अलग हटके दिखाओ. बेसिकली यूनिकनेस ही चाहिए. एवरीवन वांट्स थोड़ा कुछ हटके देना, कुछ अलग करके देना, एंड दैट्स द मेन यूएसपी. एंड बेसिकली व्हेन यू आर आर्टिस्टिकली, जैसे मैंने पूरा, आई एम फ्रॉम कैलकाटा ओनली, तो आई हैव डन माय आर्ट लर्निंग एंड ऑल फ्रॉम कैलकाटा. तो बेसिकली इफ यू आर सो गुड विद द आर्ट एंड क्रिएटिव, graphic designing is amazing platform for you. It's like I've started enjoying. शायद मेरे पेंट ब्रश मैं खाली दिवाली में बाहर निकालती हूँ रंगोली वगैरह बनाने के टाइम पे. पहले नहीं तो पहले बहुत करती थी, अब इतना नहीं करती हूँ. It's like you started enjoying it, doing it digitally so much. Bhavika, we would like to hear from you also, because the subject is such that you belong to the panelist category only. So please. So I will tell you what exactly I was basically hobby wise ही मैं पेंटिंग की थी. कैलकाटा से हूँ तो एक ड्राइंग क्लास सब जाते ही थे हम लोग जब छोटे थे. तो I really used to enjoy painting and all. When I came to Bangalore, इतना पेंटिंग का इधर मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ मिलता है. स्टेशनरी शॉप इधर का कॉन्सेप्ट ही कुछ अलग होता था. नाग पेपर हाउस उधर इतना इजीली अवेलेबल सब कुछ है, इधर पता नहीं चलता था. ग्रेजुअली दिस कंप्यूटर एंड मोबाइल इज ओनली वन थिंग वेयर आई स्टार्टेड ड्राइंग. तो बेसिकली the kwab catcher is what blurring the line of art with technology is what my kwab catcher is. मेरे को iPad मिल गया canvas मिलने के पहले. So that's how and everything changed in my life. And believe me, I started with just a simple birthday messages for my friend. Then I was a part of 2-3 clubs, and where my friends used to know that I can do this, they always tell कि तुम इसका invite बना दो, तुम ये कर दो. So then once you start doing it, you start hunting, you start searching. थोड़ा अपने hunt करते कि search करते कि क्या है actually market में available, what is the thing which is running right now, क्या different है, क्या unique है. So that's how there's so many things, and mostly exactly is a Corel Draw, Illustrator and Photoshop is the key. Like if you know that. और ऐसा नहीं है कि बहुत इन कैलकाटा में तो मेरे ख्याल से बहुत इजीली अवेलेबल होंगे ये कोर्सेज. और नहीं तो मैं बोल रही हूँ कोर्सेरा है और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसमें कुछ 499 के सब कोर्सेज रहते हैं. जस्ट गिव इट अ ट्राई. फॉर दैट ऑल्सो बेसिक्स आ जाता है. आप घर के इनवाइट्स बनाना शुरू करोगे, घर के बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज बनाना शुरू करोगे, एंड बिलीव मी इट विल लाइक 2-3 months you are good to go for the small digital with practice thing. basically. With practice base. Actually इसमें practice is must. The more But you the try. thing is that you enjoy. मजा आता है. कुछ अलग बन जाता है ना, अलग कुछ से करते तो अलग मजा आ जाता है. और उसमें कोई 2 जन बोल देता है कि हाँ बहुत अच्छा था. तो बस that is what we artists want, I think, rather than the payment. हाँ पैसा भी important है, no doubt. Yes. But I think इधर artist है वो लोग सब agree करेंगे. Apart from the payment, the main thing which we are hungry of is appreciation, a word of appreciation. And once that is there, it's like we have done it. Wow. So instead of 4, we have 5 panelists now. So next, I would like to know, जैसे पूजा ने बोला कि बचपन से ही वो बहुत आर्ट की तरफ में थी, but did any of you, amongst the 5 of you, did you think कि आप इसको अपना प्रोफेशन बनाओगे going forward, या ऐसा कुछ? आजकल जैसे बच्चों को पहले से पता होता है कि उनको क्या करना है. So any of you? सुची को पता था. I actually always wanted to be an interior designer. अच्छा, you knew from beginning. What about others? ज्योति म्यूट पर है. नहीं. मनीषा नहीं. मतलब डॉक्टर बनना है और पुलिस में जाना है वाला फेस से निकलने के बाद आई न्यू. नहीं तो शुरू में तो सबको एक बार डॉक्टर बनना था, एक बार एरोस्टेस. I always wanted, ये मेरे को मालूम था कि like I would be something very creative, because when I was in college
So every amount of time, radio spare time I used to get, मैं कभी कोई ड्राइंग कोर्स कर रही हूँ, कभी वो गोल्डन थ्रेड वाले पिकॉक बना रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ. So those all I did, and after that, like when I came to Delhi, obviously I took up fashion designing. I'm a graduate from JD Institute of Fashion Technology. तो वहां से डिप्लोमा किया मैंने, एंड आई ओपन माई बुटीक. तो क्रिएटिव था, बट द डे आई गॉट अ जॉब इन स्कूल, तो मेरे घर में बेट्स लग रहा था कि पता नहीं ये कर पाएगी कि नहीं. सो पीपल वर गिविंग मी लाइक 1 महीना 2 महीना ऐसा वाला टाइप्स. But I think eventually something just clicked, and then this became my calling, and now this is where I am. Wow. If I say about myself, मैं शादी के पहले कभी मैंने ये क्रिएटिव काम किए नहीं, and I used to call them अम्मा वाले काम, मतलब वो सिलाई कढ़ाई. I used to hate that. मतलब मुझे चैलेंज किया जाता था, तुम ये बना के दिखाओ क्रिएटिव चीज, and I used to say ठीक है, accept. But ठीक है, समय के साथ जो चीजें आपको मिलती जाती है, आप उसमें करते जाते हो. Pooja, I would like to say, Yeah, like before marriage, like for 2 years, I used to take these home classes in handmade paper making, batik, these crafts, basically paper, tie and dye, with a stress on handmade paper making with embedding of flowers and all. Or okay. ek Montessori maybe I used to teach these small kids. So that Wow. was my brush with thoda sa career. That was before marriage. फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, it was down the line, सब छूट गया वैसे. For maybe 5-6 years, I didn't paint anything. Then gradually something, just it was basically gifting only. Tanjore painting banaya, gift kar diya, kisi ko kuch chahiye for someone's birthday. So special occasions mein I always used to make these personalized gifts and gift them. So earning money then was out of my mind all these years. It was during lockdown, then I created my Insta account, and all my work, not all, almost all my work I added to my account. Yeah. Then friends kept telling me, अरे तुम तो बोली ही नहीं, you used to do this, इतने साल कुछ बताया ही नहीं. So then a few orders also came in, and I earned on those. So now it's like I want to, because now kids are grown up, I can think of making it a career option. So it all started lockdown when I created my Insta account. Correct. So for women, those who are still thinking ki whether art can be taken up as a career or not, we have 5 women in front of us. Apart from Suchi, I guess nobody was too much inclined towards making it as a profession or a career, but eventually they did due to opportunities. स्ट्रिक्टली बोला जाता था कविता कि ये बनाओ, गिफ्ट कर दो, इसके पैसे नहीं लोगे, मतलब किसी को सिखा दो, बना दो. एंड आई डिड इट फॉर इयर्स कि बनाया, सिखाया, दिया, बट पैसे नहीं लोगी, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए. बट अभी फिर मैंने कहा कि जब तक मैं अपने सामान के मनी नहीं ले रही हूँ, तब तक पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट माय वर्क. उसको वैल्यू नहीं करेंगे जब तक आप उसकी मनी नहीं ले रहे हो. आप वैल्यू नहीं करोगे उनकी भी, और वो भी नहीं करेंगे. I think Manisha and myself discussed this also. हमने ये काफी डिटेल में डिस्कस किया था, like we have had discussion on this. ये actually एक point है, means I have also designed houses and not without any professional fees, because वो strict instruction था by my father कि काम, मतलब actually मैं तो शादी से पहले से I think it is not about being an artist and not taking payment. I think it's about being a woman and taking payment. So people actually women and taking a payment was a problem. So if men are doing anything and not taking payment, so people will raise their eyebrows कि अच्छा free में कर रहे हैं. And if the same thing happens with the women, that you are doing and taking payment, then people raise eyebrows कि अच्छा पैसा भी लेगी. मुझे 3 साल नायशा में पेमेंट लेने के बाद भी जब लॉकडाउन के दौरान स्क्रिप्टिंग के लिए पहले पैसे लिए, तो मुझे फिर बोले तुम इसको भी कमाने का जरिया बना ली. मतलब this don't I got to hear कि how can you take money for this also. Absolutely. You actually evolved so much through in this experiences. ये छोटे-छोटे experience है. मेरे को भी suddenly एक call आया था and they wanted this 3-4 designs and all, and they themselves asked how much you will charge. And that time मैंने एक pause नहीं लिया शायद, and मैंने तुरंत बोला okay, this is what I'll charge. And from that my journey start. But then it was not so easy, क्योंकि कई बार ऐसा आ जाता है, अच्छा ओ तुमको पैसा देना है क्या हम लोग को, हमको तो पता ही नहीं था, हमको लगा तुम ऐसे ही शौक से कर रहा है. So that challenge is always is still I think वो काफी हद तक अभी भी चलता रहता है कई बार.
to an extent. Yes. So go back to your memory lanes, all five of you, and I will start with Jyoti again. Your first करके आई हूँ मैं कि पहले सबसे पहले मैं ही बोलूं. नहीं तो फर्स्ट ऑर्डर कब मिला आपको फॉर नॉट एज अ टीचर बट No, no. ऑर्डर फॉर योर हाँ My craft. Okay, so obviously, like जब ये पता चला कि I can dabble around with paint and I could create beautiful mandalas and everything. So basically, मेरी HOD है जो हमारी head of the department है. So she used to see all my work क्योंकि स्कूल में मैं अपना कर रही हूँ, स्कूल का काम खत्म हो गया है, and then I used to do. So actually she is the one. अभी अगर उसके घर का फोटो भेजू ना, उसके हर वॉल पे like she has 5 or 6 of my पेंटिंग stuff. So every time I visit her place, I feel very happy. And initially, as you know, they said it started with gifting. तो मैंने गिफ्ट विफ्ट बना के बहुत भेजा and probably then people realize no she's serious about it. तो पहला जो मेरा पहला was whatever पैसे आए it came from her. उसके घर में अभी I think she has almost 7 to 8 of my works in her house and mostly all of them are paid. So and then it took off like and then people started knowing and mostly friends and families. तो उनको आप चूना भी लगा सकते हो, उनको अगर फ्री में देना है तो चूना भी उनको ही ज्यादा आप लगा सकते हो. They won't crib. So Yeah, I that is started true. with them. that is true. Yeah, I started with them. They are your best critic. They are your best friends. And they are the best people who will pay you the best money, or they'll be like a lukha taking it free of cost. So, that is how it has happened with me. So, mostly all friends, families, and, my colleagues. So, that is how I started selling. So now are you able to charge what you want to charge कि अभी Yes, भी yes. आपको अंडर प्राइस रखना नहीं पड़ता नहीं है अंडर प्राइस तो पहले भी नहीं रखा मैंने. आई एम अ मारवाड़ी बाय हार्ट. तो अगर एक फ्री दिया है तो उसका भी मैंने पेमेंट निकाल लिया है, तो कोई टेंशन नहीं. तो मैं एकदम पक्की मारवाड़ है. But now I get it, like Okay. if I see this is how what it is, so I give them. But they're not very highly priced also. इतना Yeah, भी मैं yeah. because I know they're going to use it for their house, not that they're going to do a further business selling Yeah. it. है ना, घर के लिए है तो reasonably I charge them and they are very happy to pay. So And Jyoti, I would like to ask one more question from you since you are also into teaching. What do you like more? सिखाना ज्यादा पसंद है कि ऑर्डर्स लेके बना के दे दो बस? नहीं, I actually like to do. मेरे को मैं बैठी बैठी करती रहती हूँ. ऑर्डर्स आते हैं तो ठीक है, I will do. But I still sit and I'm still doing my own. So I have a big sketch pad. उसको मैं भर रही हूँ. Best, as everybody said, गिफ्टिंग के लिए बड़ा अच्छा है. किसी का बर्थडे हुआ, ले एक जाओ. फ्रेम कराओ, ज्योति अग्रवाल गिफ्ट. तो चल रहा है बस. I mean it's fine, but I love whatever I'm doing Yeah. now. And it's not just one medium I have dealt with. I have explored so many other mediums and I'm enjoying it. Yeah, you love it yourself, and I'm sure you make others also fall in love Love with it. the art because You can see my background. This is nothing. मेरा पूरा room and मेरा पूरा I have a सारा stairway. सब पूरा भरा हुआ है एकदम. कोई जगह नहीं छोड़ी मेरे घर में. So my husband keeps saying me, one more nail and the house is going down. So I said, "Don't." So now, Manisha, when was your first order? As soon as I launched Naisha, before launching Naisha, I did my 3 or just on the say of my saying कि मैं शुरू कर रही हूँ. Because अच्छा. मुझसे पहले मेरे दोस्तों को मालूम था कि मैं ये प्रोफेशनली कर सकती हूँ और वो लोग मुझे बोलते रहते थे. बिकॉज जब भी किसी का बर्थडे होता तो भाई अच्छा एक हैम्पर मैं बनाऊंगी, ट्रे मैं डेकोरेट करूंगी, उनके कार्ड्स मैं बनाऊंगी. तो दे यूज्ड टू, तुम इतना अच्छा कर रही हो तो तुम इसको प्रोफेशनली क्यों नहीं करती? मैंने नहीं मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं नहीं करूंगी. आई वाज इन अ डिनायल मूड. फिर जैसे ही मैंने ये डिसाइड किया, मेरे को डिसाइड करने के पहले से ऑर्डर्स, एंड जिस दिन मैंने नाइशा लॉन्च किया, अर्ली इन द मॉर्निंग 7 o'clock फर्स्ट ऑर्डर. तो देन नो लुकिंग बैक. तो इट वाज लाइक दैट कि ऑर्डर्स के लिए कभी मुझे सोचना नहीं पड़ा कि कैसे आएगा. इट वाज देयर. How long back, Manisha? कितना इस बात को कितना 2018. 3 साल हो गए already. We are into 21 now.
2018. As soon as my son went to hostel, I was, मेरा Okay. पहले था कि डाइट कैफे खोलना है. I had a पूरा file with डाइट कैफे because that time I was into weight loss programming. और मैं Okay. जब भी बाहर खाना खाने जाती थी, मुझे वो डाइट वाले ऑप्शंस नहीं दिखते थे. तो मैं अपने हस्बैंड हाँ. थी कि यार सब कॉर्पोरेट जॉब में है, उनको खाना है बाहर, उनके पास टाइम नहीं है हेल्दी पकाने को, तो कॉर्पोरेट लंच और वो सारी जो हेल्दी हाँ. ऑप्शन रेस्टोरेंट्स बहुत चलेंगे. बट फॉर दैट आई नीडेड फाइनेंस फ्रॉम माई हस्बैंड. तो उसको कन्विंस कराना वाज द बिगेस्ट थिंग. तो आउट ऑफ एंगर एक बार वो ऑफिस गए और जाते समय मैंने कहा मैं पेपर बैग का काम शुरू कर रही हूँ. ही लाफ्ड, हाँ कर लो, मैं ये शुरू कर रही हूँ. बोला हाँ कर लो. इट वाज जस्ट लाइक दैट एंड आई जस्ट डिड इट. फिर मैंने उनकी अप्रूवल की वेट नहीं की कि आप क्रिएटिव चीज के पैसे मत लो, मतलब आई जस्ट डिड इट कि मुझे करना है. सो इट वाज लाइक दैट ओनली. And since you also do multiple things in your work, कौन सा फेवरेट है मनीषा? क्या बनाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे हर बार वो नया काम, जैसे अगर हैम्पर भी बना रही हो, अगर कोई मुझे आप रिपीट वाले का ऑर्डर देते हो मुझे मजा नहीं आता, लेकिन जब आप मुझे चैलेंजिंग कुछ देते हो कि ये मुझे नया चाहिए, तो वो बना के मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो करना मुझे डिफिकल्ट लग रहा है पर मैं वो कर ली. तो वो जो अचीवमेंट वाली फीलिंग मुझे आती है, उसके बाद जब क्लाइंट का एक लंबा वाला मैसेज आता है थैंक यू फॉर दिस दैट, तो वो मुझे जो सेटिस्फेक्शन देता है वो रिपीट बल्क ऑर्डर्स नहीं दे पाते. नहीं देते हैं. What about you, Pooja? When did you get your first order? Like I said कि वो lockdown में that mandala painting which I had posted in the group, that was my Okay. first chargeable order. Wow. So it is a big, like 30 inch by 13 size है वो. So I got this order because एक छोटा mandala मैंने post किया था अपना Insta account में, and seeing that actually a friend only she placed an order. Okay. And up till then also, like I said कि I was always very hesitant. It didn't even strike me that I should charge also for my work. So countless numbers have just gone ऐसे ही. So उस That was mind blowing. And which one do Yeah. you like most since you work with all the art forms? सब किए हैं आपने, तो आपको सबसे Yeah. ज्यादा अच्छा कौन सा लगता है? Oil painting, but acrylic is fast, but the real art is oil. Yes. So all the artists are agreeing. उसमें बहुत पेशेंस चाहिए होता है, जब एक के बाद एक लेयर आती रहती है, सूखने में जो टाइम लगता है, तो टाइम Yeah. लेकर And बनाना because it is not dried, every day you see कि अच्छा यहाँ पे थोड़ा और blend कर देती हूँ, वहाँ पे थोड़ा और blend कर हाँ. उसके बाद वो dry नहीं होगा कभी. But उसमें डेप्थ आता है. ऑयल पेंटिंग में एक Depth आता डेप्थ है. क्रिएट होता है जो एक्रिलिक में नहीं है. True. सुची को याद है क्या फर्स्ट ऑर्डर कब मिला था कि भूल चुकी है अभी तक? फर्स्ट मतलब अगर मेरे 2 फर्स्ट होंगे, अगर हाँ हाँ, इंटीरियर्स का फर्स्ट और फिर क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनिंग का फर्स्ट. स्टडिंग मेरा जो कोर्स चल ही रहा था, माय ओन मामा जी ही हैड टेकन अ फ्लैट इन लेक डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स, ये स्वभूमि, ओके. एंड उनको फ्री में करवाना था काम, वेरी फास्ट इनका. तो वो मेरे को बोले कि तुम ही कर दो, तुम पढ़ रही हो तो तुमको आइडिया भी होगा, तो तुम ही कर दो. तो दैट वाज माय फर्स्ट वर्क दैट आई डिड, आई थिंक वो था मेरा. एंड ग्राफिक्स के लिए फर्स्ट पेड अगर बोला जाए तो दैट वाज इन लॉकडाउन. उसके पहले आई यूज्ड टू ऑलवेज डू, मतलब कॉलेज टाइम थिंग्स फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बट पेड वाज इन लॉकडाउन. ग्रेट. Basically भाविका? lockdown होता और हाँ. ना हम कुछ कर पाते. एक्चुअली आई थिंक मतलब लॉकडाउन इज लाइक ब्लेसिंग फॉर मेनी ऑफ अस, Yeah. Many of us. For women, yes, it is. for women, yes. Actually, so my graphic designing, I remember very much. It was 2016, 8th December. मैंने डेट, मतलब मेरा बहुत हैबिट है डेट्स और ऐसे सब कुछ सेव करके रखने का कि इस दिन ये हुआ. So I'm like that. और पेंटिंग, when I came Bangalore in 2002, I started taking the classes. वो मैंने इनिशियली 8 years किया था, छोटे छोटे बच्चों को ड्राइंग सिखाती थी मेरे अपार्टमेंट में. लेकिन वो लोग खुद, उसकी मम्मी लोग परेशान हो जाते क्योंकि मैं उनके बच्चों को एक क्लास के जो 1 hour का ड्राइंग क्लास में लेती थी, उनको 3 घंटे जाने नहीं देती थी. बैठे रहो. आई वॉज टोटली फ्री. मेरे आई डिडंट हैड अ बेचारे किड्स दैट बच्चे. टाइम. तो इवन माय हस्बैंड यूज्ड टू लाफ कि तुम क्या कर रही हो, तुमको पता भी है कि वो बेचारे बच्चे रोने लगेंगे, उनको आर्ट से नफरत हो जाएगी. But that 3 years I think I took that drawing class for the kids, but it was beautiful. मजा आ रहा था बच्चों के साथ and all. But then I just switched to this graphic.
2016 I've started my work. Bhavika, so still rangolis ki computers, रंग मतलब graphic designing या real designing? ग्राफिक. ग्राफिक. कितना सोचना पड़ा है. नहीं, वो रंगोली साल में एक बार करती हूँ तो बहुत मजा आता है, रियली इंजॉय, क्योंकि उसके एक पहले से 15-20 दिन से सोचना होता है कि क्या डिजाइन करना बनाएंगे? है, कैसे करना है. तो दैट एंटायर that 15 days is full of that festive mood, सोचना क्या डिजाइन करना है, कैसे डेकोरेट करना है. तो आई लव डेकोरेटिंग, जैसे टेबल सेटअप करना, वो सभी मुझे बहुत मजा आता है. सो दैट इज समथिंग विच आई एंजॉय. इफ यू आस्क मी इन दैट कॉन्टेक्स्ट, विच इज नॉट प्रोफेशनली आई एम डूइंग, बट आई रियली एंजॉय दैट एज वेल. सेटिंग अप, Table setup. डेकोरेटिंग. जैसे गणेशा करती हूँ मैं, लाइक फ्रॉम लास्ट 14 years, so I love to decorate my house that time. I really enjoy decorations. So events may be your next यस calling. यस यस. तो मेरे को अभी ऐसे फोन में आने लगे, अरे तुम इवेंट करती हो ना, मुझे को इसका इसमें नंबर मेरे पास आ रहा है, मैं इवेंट्स कर नहीं रही हूँ अभी. So moving on, Manisha, हम्म, how to convert, जैसे अपने सभी, I think most of the women are creative at heart. अपने बचपन से कोई ना कोई एक ना एक आर्ट फॉर्म ऐसा होता है जो कि अपने को दिल से बहुत पसंद होता है और अपने को खुद को लगता है कि मैं इसमें बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, मैं इसको अपना करियर बना सकती हूँ. सो इट कुड बी डांस, इट कुड बी सिंगिंग, इट कुड बी पेंटिंग, जैसे भाविका ने बोला कि टेबल डेकोर या इवेंट्स करना, घर सजाना. सो हाउ टू डिसाइड कि आप ये प्रोफेशन में जा सकते हो क्योंकि अपॉर्चुनिटीज है, और फिर उसको कैसे कन्वर्ट करें हम उसको प्रोफेशन में, जैसे कि चार्ज करना कैसे स्टार्ट करें एंड उसको प्रोफेशन कैसे बनाएं. चार्ज करने का अब सबसे अच्छा तरीका है कि जिस चीज को आप डिसाइड करो कि इस काम को प्रोफेशनली कर सकते हो, एक तो उसका आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आप उसको कर सको. दूसरा, अपने घर के लिए जब हम कोई आर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो भी सामान है, वी डोंट थिंक अबाउट द कॉस्टिंग. यस. जो हमारे पास होता है बेस्टेस्ट चीज हम लोग उठाते हैं, लगाते हैं. वो बनाना मेरे लिए बहुत आसान होता था. मेरा चैलेंज तब आता था जब मैं किसी के गिवन अमाउंट के अंदर उस चीज को मुझे बनाना है, तो मुझे वो रॉ मटेरियल कहाँ रॉ में जाके मिलेगा, वो मुझे वो पता करना होगा. मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने शुरू किया था, वुडलॉक वाज द ट्रेंडिंग थिंग. 3 साल पहले वुडलॉक वाज द न्यूएस्ट थिंग कि वुडलॉक पे प्लेटर और हैम्पर बनाना है. मैंने वहीं से शुरू किया कि मेरा पहला ट्रे पे तो सब बनाते, मैं वुडलॉक पे शुरू करूंगी. मैंने अपना पहला ऑर्डर का पहला वुडलॉक 500 रुपीज में खरीदा. जो स्लाइस आता है लॉग का. यस, Okay. मुझे वो 500 में लगा, तो भी मुझे कॉस्ट से मतलब नहीं था, मुझे वो करना था. फिर जब लगातार ऑर्डर्स में फ्लडिंग कि जो आ रहे हैं वुडलॉक के ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आई हैड टू सर्च. एंड आई टेल यू, मैं रॉ जहाँ पे कारपेंटर लोग लॉग्स ला के कटवाते हैं वजन के वहां हिसाब से, से. मैं वहां गोले पे जाके मैंने कटवाया. एंड इट केम 10 टाइम्स ज्यादा मैं पे करी थी, 50 रुपीज पे वो आ गया. तो वो जो चीज है, आपको पहले वो होमवर्क, जैसे मैंने बाद कूदने में के किया. यंत्र शुरू किए, लोगों को पहले वो होमवर्क कर लेना होगा कि आप किस काम को कम बजट में कर सकते हो और लोगों के हिसाब से आप मॉड्यूल कर सकते हो, ताकि बाद में आपको ये परेशानी नहीं है कि हाउ टू फेस पीपल. नंबर एक बात. नंबर दो बात, अपने आप को आपको अनाउंस करना होगा कि हम ये काम कर रहे हैं. फेसबुक पेजेस आर द मोस्ट इजीएस्ट थिंग टू अनाउंस योर वर्क पैटर्न कि दिस इज यू आर रेडी फॉर द प्रोफेशनल वर्क. जैसे आप फेसबुक पे हम लॉन्च करते हो, आप प्रोफेशनल हो और आप इसके पैसे लोगे, लोगों को आधा नॉलेज पता चल जाता है, एक्सेप्ट फॉर योर फैमिली. बाकी लोगों को पता है कि अब ये काम, जैसे भाविका ने अगर अपना ख्वाब कैचर लॉन्च कर दिया, उसके बाद वो प्रोफेशनली कर रही है, लोगों को चार्ज पूछना पड़ेगा. लेकिन जब तक आप उसको लॉन्च नहीं करोगे, आप फ्री में काम करते जाओगे. तो अपनी पहले खुद का होमवर्क, रॉ मटेरियल्स का जुगाड़, एंड फिर उसका लॉन्च करो, एंड यू आर डन विद द प्रोफेशनल थिंग. ओके. ज्योति, एक चीज आप बताइए कि जो घर पे हम लोग अपनी पेंटिंग्स वगैरह बना रहे हैं, जैसे अब आप भी बोलते हो कि मैं घर पूरा मेरा भर गया है पेंटिंग से, एंड घर पे भी सब बोल रहे हैं कि और एक किला एंड द हाउस इज डाउन. So, do you think कि every woman who is doing art or paintings or any other thing has a future in that as a career? कि it is very difficult to get into this.
एक्चुअली पता है कविता, इनिशियली क्या था ना, आर्ट वाज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव थिंग एंड Hmm. नॉट एवरीबडी कुड अफोर्ड इट इनिशियली, जब लाइक यू नो देयर वर वेरी फ्यू पेंटर्स. But आजकल because of like you know whatever internet, YouTube, or there are various you know numerous forms of arts, and I think you know if you explore within yourself कोई एक पर्टिकुलर चीज पे, जैसे मनीषा ने बोला, you really have to be confident about what you are doing first. पहले आप अगर उसमें प्रोफिशिएंट हो जाते हो, एंड देन यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं इसको आगे सप्लाई कर सकती हूँ या बेच सकती हूँ. पहले तो आर्ट क्या था कि इट वाज लिमिटेड टू अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. वही आर्ट गैलरी जाते थे एंड they used to buy. Nowadays, like you know, different forms of like you know arts have come, and so I really think you know anybody who really wants to make a career, you know, selling these paintings, life there's no time like the better you know that like the present. Yeah. अभी लोग कर सकते हैं बिकॉज इतना सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है. आई थिंक एवरी पर्सन इज ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड यू नो वट एवर डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स. सो इफ यू रियली थिंक you are proficient in certain thing, there's still time and you can go ahead and do it. एंड इनिशियली क्या होता है, व्हाट माय सजेशन इज, जैसे मैंने पहले बोला, बहुतों को गिफ्ट भी किया, बहुतों को हाँ. जो घर भी आते हैं, when you have it around you and when you are living those paintings, then people come and get appreciated, or people come and you know Yeah. get inspired by it, and they will buy. If your art Hmm. is worth selling, I'm sure there are people who are ready to spend that money to put it in their house. So I Absolutely. think you know all said and done, yeah, people will do it, and you just have to be you know you just have to have confidence in yourself कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, and most important, हाँ मैं ये बेच भी सकती हूँ. Yes. Manisha has उसके लिए something to add. बहुत हैंडल्स है आज. मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी पायल, शी इज राइट कि लोग अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी अपने एक्सपीरियंस से. जैसे आपके घर वाले आपके घर की दीवारें भरने के बाद, जैसे मेरे साथ जो हुआ कि सारी पेंटिंग्स अभी पुराने घर में जो मैंने बनाई, और मेरे पास डिजाइनर्स की पेंटिंग मेरे घर में लगी, बिकॉज लोग बोर हो गए थे मेरे ही हाथ की पेंटिंग्स देख देख के. दिस इज लॉजिकली राइट. आई एम नॉट ब्लेमिंग देम कि व्हाई ऑल द टाइम माय पेंटिंग्स. आई एम नॉट सच अ ग्रेट पेंटर. तो जो लोग आपकी पेंटिंग खरीद रहे हैं वो भी तो एक पॉइंट के बाद अपने दीवारों पे कितना पेंटिंग चेंज करें. वी रियली डोंट चेंज आवर पेंटिंग्स. इफ वी आर बाइंग, वी डोंट चेंज ऑन अ डेली बेसिस और ईयरली बेसिस. तो मुझे ऐसे लगता है कि जो लोग आर्ट फॉर्म में एक्सपर्ट हैं और जो आर्टिस्ट बाय हार्ट हैं, उनको उसको प्रैक्टिकल जो अलग चीजें हैं, लाइक चाहे वो बॉक्सेस हो चाहे वो ट्रे, मतलब दे हैव टू थिंक देयर वे कि उस आर्ट को आप किस चीज में डालो जो रोटेशन ज्यादा में बिकेगी. सकती है और ज्यादा जगह सर्कुलेट हो सकती है. वेडिंग गिव अवेज में, आपके बेबी शावर्स में, या आपके कोई और जगह में, कोई ट्रेज में, कोई पोस्टर्स में, जहां पे आप उन्हें यूज कर सको. लाइक दीवालों पे पेंटिंग एक पॉइंट के बाद लोग नहीं खरीदेंगे. तो नए जो लोग हैं, मैं उनको यही बोलूंगी कि अपने आर्ट को आप प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करो, कि कैसे आप उस चीज को प्रैक्टिकल के साथ कनेक्ट करते हो. सपोज ग्राफिक डिजाइनिंग उसको आती है, उसको हमारे फील्ड में आप कैसे कोलैबोरेट करके हम लोग दोनों मिलकर ट्विस्ट कर सकते हैं. तो उन चीजों का मेरे हिसाब से आज ज्यादा ट्रेंडिंग टाइम है, बिकॉज उस तरीके से आपको नए क्लाइंट मिलेंगे और आपका काम कभी रुकेगा नहीं कि ऑर्डर नहीं है. बिकॉज कुछ ना कुछ यू हैव टू क्रिएट दैट डिजायर. आपको ऐसे प्रोडक्ट लाने होंगे कि लोगों को मन करे मैं खरीदूं. एब्सोल्युटली. अभी तो आजकल अपने देख रहे हैं कि लोग इयररिंग्स, नेक पीसेस, हेड बैंड, मतलब एवरीथिंग इज नाउ बीइंग कन्वर्टेड. का सिर्फ एक दिन का वर्कशॉप किया था कविता, एक ट्रे सीख के आई थी. एंड आई टेल यू, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने रेजिन से नहीं बनाई हो. इयररिंग से लेके स्वास्तिक से लेके मैंने बांदरवार में रेजिन के पीसेस यूज कर लिए. मतलब कुछ ऐसी चीज नहीं है. तो वो आपको अपने अंदर से वो क्रिएटिवली उन चीजों को यूज करना होगा. सो रेजिन इज आल्सो बीइंग यूज्ड फॉर टेबल टॉप्स. पूरा पूरा बड़ा बड़ा टेबल टॉप बन रहा है. हाँ वो तो है ही, लेकिन वो आप क्या, आपने एक टेबल टॉप बना लिया, एक जन की डाइनिंग टेबल मैंने सूची से ऑर्डर ले लिया, लेकिन वो डाइनिंग टेबल 20-25 साल उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा. फिर मैं क्या करूंगी. So we should focus on things, you know, which break maybe, or it's not breakable, but naya people change fast. People change Abhi, fast. I would like to add, like, Yeah, I Pooja. tried painting pots में, अपने normal जो terracotta pots है. हाँ हाँ. So actually there was a requirement. I had hosted a party at home and I couldn't think of what to give. So मुझे suddenly, like, you know, I came up with the idea, let me give plants. So I painted those pots and people really, they were appreciative. Yeah. And मैंने simple श्याम तुलसी लगा के दिया उसमें, but they were very appreciative कि ये hand painting and pot, and this was like almost 2 years back.
but still they message me, and अभी जब भी, मिलते they ping हाँ. me कि अभी भी मैंने रख के रखा है तुम्हारा ये pot, and the paint is still intact, so it has not got damaged. See, So that- like Absolutely. Manisha said कि various ways of using art. And उसको अपने especially something- लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करो बेसिकली. या And I think if somebody is investing on a painting or something, like, somebody's coming and buying, they genuinely like it and they want it there. So a lot of people, like, they have paintings. Like, I have paintings from different artists in my house also, but then it's not that I'm going to give them away. So I think, it's there. मेरे हैं तो उनके साथ उनके भी हैं. So it is like that. Like, if somebody genuinely likes your stuff and somebody buys it, they will take care of it, I'm sure. yes, Yeah, yeah. absolutely. Yeah. So next question is कि is there any opportunity which you feel that you missed, Suchi? कभी ऐसा कुछ opportunity आया और ये सोच के कि शायद हम नहीं कर पाएंगे ये, या this is not my forte, and you said no, and later on you realized कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज छोड़ते हैं एज वुमेन, बहुत अपॉर्चुनिटीज छोड़ते हैं. मतलब कई बार एक्चुअली, जैसे से सपोज मैं अगर ये बोलूं कि ये मंदिर जो मैंने किया, हाँ, मैंने उसके पहले 10 बार सोचा कि छोड़ देते हैं, मंदिर नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट है. घर एंड कहाँ ऑफिस, और घर ऑफिस क्या होता है ना, इतने कर चुके हैं कि वो एक सेट पैटर्न हो गया माइंड में. एक बेड होगा, 2 साइड टेबल होगा, एक अलमीरा होगा, ये होगा वो होगा, तो वो माइंड में वैसा ही प्रोसेस. और एक क्या होता है, डिजाइनिंग हम लोग को दूर से बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि क्रिएटिव क्रिएटिव क्रिएटिव. वो सिर्फ क्रिएटिव नहीं है, वो जब आप करने बैठते हो तो उसमें जो पीछे में उसका जो वो बैक जो मेहनत है, वो वही जो मनीषा जी, जैसे मेरे को लगता है कि मेरा 90% काम मिस्त्रियों को हैंडल करने में और रॉ मटेरियल में ही निकल जाता है. डिजाइनिंग इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ माय प्रोफेशन. एक रूम करने में आई विल टेक 2 days, एंड देन वो बनने में 2 महीना लगता है. तो वो बाकी का जो 2 महीना है वो सिर्फ उस प्रोसेस के पीछे मेहनत है और कुछ नहीं है. तो जितना ल्यूक्रेटिव है डिजाइनिंग, उतना एक्चुअल में इजी नहीं है. मतलब ये मेरी सोच है ऐसी. जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग भी मुझे जितना कैफे का काम करके जितना ल्यूक्रेटिव लगा, बट एक्चुअल में जब मैं बैठी लेके और फिर जब वो फट से डिजाइन रिजेक्ट हो जाता है, मीन्स आपने 3 घंटा लगा के एक लेबल डिजाइन किया, फिर जैसे आपने उसको क्लाइंट को व्हाट्सएप किया, मतलब एक्चुअली ऐसा भी आया रिएक्शंस मेरे पास, वो थम्स डाउन रिएक्शन. मजा नहीं आया इज द ट्रेंडिंग आंसर. ये मजा नहीं है, कुछ अच्छा करो. थम्स डाउन वाला रिएक्शन. तो उस वैसा रिएक्शन जब आता है तो फर्स्ट आप जब कुछ भी करते हो तो एक बार डर जरूर लगता है. लेकिन मैंने ना एक्चुअली मतलब आई एम नॉट बूस्टिंग माई सेल्फ. जैसे मेरे को काकुड़काची में मिला था एक टेरेस के लिए, क्रिकेट अरीना बनाना है ऑन अ टेरेस. मुझे बहुत डर लग रहा था. आई वाज वेरी नर्वस. आई हैड नेवर डन दैट. बट मैं मोस्टली अपॉर्चुनिटी छोड़ती नहीं हूँ. आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. मैं ना एक्चुअली मेरे को ना बोलना भी बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए. मेरे अंदर से समहाउ ना निकलता नहीं है, और वो शायद मेरे को हेल्प कर जाता है इन अ वे. मैं तो हो जाएगा बोलती हूँ. मैं कोई बोलते ये कर सकती हूँ, हाँ हो जाएगा. उसके बाद उससे ऑर्डर लेने के बाद सोचती हूँ उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, और वो मैं करके निकल भी जाती हूँ. उसका रिसर्च, फिर उसका ये, फिर उसका वो. Suchi, I must add one thing. I'm in CJ blog. I'm seeing that mandir coming up. Didn't know that you were the designer. बहुत अच्छा बन रहा है. So congratulations. So my suggestion would be कि ना मत बोलो. मतलब एक्चुअली Exactly. क्योंकि जब भी मैंने ना बोला भी है तो मैंने रिग्रेट किए. चाहे कुछ कम पैसे मिल रहे हो, जैसे मैं बताऊं, आई हैव नॉट टोल्ड अ नो फॉर अ रूम आल्सो. अगर मुझे किसी ने बोला है कि मेरे बेटे की शादी है, आप सिर्फ मेरे एक रूम डिजाइन कर दोगे क्या, मैंने ना नहीं बोला. तो ना मत बोलो. मैंने ना बोला और बहुत सारे ऑर्डर्स को ना बोला, और अभी तक मुझे बहुत दुख है. लेकिन उस वक्त प्रॉब्लम ये था कि या तो मेरा 25th का सेलिब्रेशन का पार्टी ऑर्गेनाइज कर लूं, फैमिली के सामने तो ऑब्वियसली ना बोलना पड़ता है. That is prioritizing your requirements. That's a different thing. बट आउट ऑफ डर या आउट ऑफ मनी. हाँ, फर्स्ट टाइम मैंने वो एग्जीबिशन की और बहुत सारे नए क्लाइंट अलीपुर एंड ऑल से मेरे को जानने लगे थे, तो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स थे. लेकिन उस वक्त मुझे चूंकि 2 के बीच में प्रायोरिटी फिक्स करने में अभी भी मैं कई बार रिपेंट करती हूँ, यार वो तो मनी जाती है ऐसे में. लोग काम करते हैं, लेकिन फैमिली व्हेन इट कम्स टू प्रायोरिटी, एब्सोल्युटली. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अपने डर के लिए या कि सेल्फ डाउट के हिसाब से अगर कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ दे और फिर बाद में लगे कि यार ले लेते. मैंने
2 years back, जब मैंने अपना I thought let me do dot mandala. उस समय नया नया आया था and you were seeing images all over Pinterest and everything. Trust me, मुझे dot mandala का D भी नहीं आता था. ठीक है. So then and by the time I have the summer camps in my house. As Bhavika said, a lot of children come and I have my space and वहाँ पे आके वो लोग summer camp करते हैं, which is very lucrative. तो मैंने कहा okay, let me put one dot mandala. मुझे D नहीं आता dot mandala का. And then I studied and by the time children, you won't believe it, 2 साल बीत गए. The first dot mandala I ever did was that big one जो मेरे room में है. The colorful one. Yeah, the colorful one. I have never done a dot mandala before, but Nani bola. मैं कहा, oh, you want to learn this? Definitely, I'll teach you. Bas. Then you study about it, you read about it, and because you have a creative hand, तो वो eventually आ जाता है. ऐसा नहीं है कि you will so and then you get it. उसके बाद तो बहुतों को सिखा चुकी मैं. Finally मेरा बना एक. So I was so excited कि finally मेरा एक बना. मेरा हुआ था ऐसे 2017 अराउंड समवेयर. आई गॉट वन वेडिंग इनविटेशन था जिसमें बहुत ज्यादा एनिमेशन था एंड दैट टाइम आई वाज नॉट वेरी गुड विद द एनिमेशन. सो वो मैं हाँ ना मतलब मैंने उनको बोला ओके आई गेट बैक टू यू. मैंने थोड़ा ढूंढा किया कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज किसी का फंक्शन है. आई जस्ट कांट प्ले अराउंड के यार किसी का फंक्शन खराब करना है. बाय द टाइम मैंने ये बैक एंड वर्क किया कि मुझे कोई एक दूसरा मिल सकता है इंटर्न जो मेरे लिए कर दे अगर मेरा नहीं होगा तो. मैंने उनको 2-3 सैंपल भेजा एंड दे सेड यस टू दैट सैंपल जो मुझे लगा मैं कर सकती हूँ. मैंने वो इंटर्न से बात किया, वो बोला वो 6,000 लेगा. मैंने चार्ज उस टाइम पे खाली 4,500 इसको बोला था. मैं बोली ठीक है तू बना मैं बनाती हूँ. मैंने ये सोचा मैं भी बनाती हूँ, वो भी बनाता है, दोनों बनाते हैं, देखते क्या होता है. मैंने दोनों का सैंपल भेजा. दे चूज माइन. सो आई फेल्ट लाइक वाओ. मतलब वो 2,000 लॉस किया उसका मुझे दुख नहीं था, बट मैंने वो 1,500 में जो सीखा उसका अचीवमेंट था कुछ अलग ही. वेरी नाइस. एंड इट्स अ गुड आइडिया ना कि अगर खुद पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई किसी का मैं इवेंट खराब ना करूं, नहीं करना था. हाँ, कोलैबोरेट विद समबडी एल्स एंड दैट आई डिड दैट टाइम. या सो आई डिड बोथ कि चलो ये तो करना ही है कैसे भी करके. आफ्टर दैट तो एनिमेशन करना ही था और ज्यादा करने लगी फिर. वाओ. सो पूजा मेरे को एक चीज आप बताओ, सिंस आप अभी रिसेंटली आपने इसको प्रोफेशन में कन्वर्ट किया है, सो व्हाट आर द चैलेंजेस व्हिच यू फील कि किसी को भी फेस करना पड़ता है इफ यू आर इनटू क्रिएटिव लाइंस बिसाइड्स चार्जिंग? सो दैट वी हैव ऑलरेडी besides yeah, I was going to add so, वो तो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके. सो बिसाइड्स दैट व्हाट आर द अदर चैलेंजेस व्हिच somebody who's into creative line has to face? See, showcase your work basically. Finding customers. You need a platform. Yeah, finding a platform to showcase. I mean, you can't do it digitally all the time. So, वो एक तो challenge है कि how to reach out to a maximum audience, how to make your presence felt in the art scene. क्योंकि इतने साल से you've been just gifting, तो people take you lightly. वो लोग अब professionally start भी कर लिए, so they will not take you in that way. Your immediate circle of family or friends, they will, वो तो अभी भी like I'm still getting people telling me अरे मेरे लिए ये बना देना वो बना देना. अब मैं कैसे charge करूँ? No, so you can ask them, no? Are you placing an order? थोड़ा सा you will have to ask, are you placing an order? Because I've started taking orders now. So some way you have to convey to people, those who are ignorant, that you've started doing it professionally. I think एक और maybe just I think एक challenge आता है, like when you have like on display you have 10 paintings, somebody comes and buys, fine, like मेरे घर में लगा हुआ है, anybody comes to my house, you want this one, okay take it, fine, no problem. But when they say कि मेरे को कुछ नया बना के दो, भाई बना तो हम देंगे, साइज भी आपने दे दिया, अब वो पसंद आएगी कि नहीं आएगी वो नहीं पता. You have to know, like it may not be the same thing, and obviously no paintings are same and no two paintings are same. And sometimes you can't read, you really have to read the person's mind कि उनको क्या चाहिए. अगर वो नहीं हो पता है कितनी बार, अगर तालमेल नहीं बैठा हुआ है, then you're screwed. तो वो तो फिर प्रॉब्लम ये ना एक्चुअली बहुत बड़ा चैलेंज है टू एक्चुअली लिसन और नो, या ये बोलना कि ये नहीं पसंद आया किसी भी क्रिएटिव इंसान के लिए, बिकॉज उससे वो अच्छा ही लगता है, जो हम बनाते हैं हमें अच्छा ही लगता है. अच्छा,
ये वाला ये बोले कि ये बहुत ही बेकार था या ये नहीं पसंद आया, ये सबसे डिसहार्टनिंग होता है। एंड आई थिंक मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे काम में यही है। यही है। एग्जैक्टली। और इतनी और मेहनत है से जो बना रहे हो, you लोग putting your heart and soul into it. हाँ Yeah. बिल्कुल, मैं बोला ना, चैलेंज 3 होता घंटा है। लगा के एक लोगो बनाया, वो सामने लोगो भेजा और वो ऐसे थम्स डाउन का एक व्हाट्सएप, बस 1 सेकंड लगा Oh, उसे। that's sad. That's really sad. आई थिंक वो सबसे बड़ा चैलेंज टू ओवरकम यही है। आई थिंक रिजेक्शन जिसे हम बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं, Manisha has another challenge. एक तो ये कि अगर आप जैसे बहुत सारा क्रिएटिव काम करें, जैसे भाविका सूची इज इन द टेक डिपार्टमेंट, तो वो लोग बहुत फटाफट डिस्प्ले डिजाइन कर सकती है। हम लोग जो क्रिएटिव चीजें करते हैं उसको हाँ। राइट तरीके से डिस्प्ले करना कि वो सुंदर तो है और सुंदर दिखे भी। दिखे, तो हाँ। हम अपनी मार्केटिंग भी खुद करें। जो नए लोग होते ज्यादा उनके पास हैंड्स नहीं होते, तो वो अपने प्रोडक्ट भी बनाएं, यूनिक भी बनाएं, उसकी मार्केटिंग भी करें, उसकी एडवर्टीजमेंट भी करें, एंड उसके पैसे मतलब अकाउंट्स भी करें, बैंक अकाउंट भी खोले। तो एक साथ जो बहुत सारा चीज फ्लड हो जाता है, प्लस जो आपकी पुरानी ड्यूटीज थी वो तो वही की वही है, लाइक होम, किड्स, रिलेटिव, सोशल फंक्शंस। तो उस वक्त वो एक अजीब सा बाहर जैसा आ जाता है जिसमें हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते। और फिर That's दूसरा क्या होता है, दूसरी बात क्या होती है कि हमको यूनिक बनाना है। हमने बहुत मेहनत की, जैसे मैंने कई बार हुआ कि बहुत अलग सा कुछ एक सोच के एक्सपेरिमेंट करके नया प्रोडक्ट डाला, और किसी ने बहुत आराम से, कई बार हुआ कि मेरा प्रोडक्ट उठाया, अपनी वॉल पे माई वर्क करके डाल दिया। मुझे तब पता चलता जब तक उससे वो ऑर्डर कमा चुका होता है। उसके बाद मुझे कोई मेरे जान पहचान का बंदा बोलता है, क्योंकि वो मुझे तो ब्लॉक कर देता है, मैं तो देख नहीं सकती उस बंदे का काम, और वो मेरे ही वर्क का ऑर्डर लेके उसके बाद वो नया बनाता है। एंड एक चीज देखने के बाद आप उसको क्रिएट कर सकते हो। बेसिक जो आप बनाते हो, चैलेंज वहां होता है जब अपने, जैसे मैंने अगर कुछ देखा उसके बाद इम्प्रोवाइज करना इज वेरी इजी, बट मेकिंग फ्रॉम बेस स्क्रैच दैट इज डिफिकल्ट। तो हमें यूनिक प्रोडक्ट बनाना और उसको मार्केट में पहले अच्छे से बिना डिस्प्ले के हम बेचें कैसे, और उस प्रोसेस में लोग चोरी कर लेते हैं डिजाइन, तो वो हर क्रिएटिव बंदे को बहुत मुश्किल है। So if your designs are being copied and stolen, Manisha, you are a star. सब्यसाची का ही तो Exactly. डिजाइन्स कॉपी होता है ना, इधर उधर Exactly. अगल बगल वाले का थोड़ी डिजाइन कॉपी होता है। हमने यही बोला, पहली बार मुझे बुरा लगा तो यही बोला, यार तुम सोचो तुम पॉपुलर हो रही हो, इससे सोचो कुछ हाँ। और नहीं, बन। कभी ऐसा होता है ना, जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था, मैंने एक ग्रीटिंग्स बनाया था बहुत पहले, और इस लास्ट ईयर मेरे को टाइम नहीं मिला था दिवाली के लिए खुद का ग्रीटिंग्स बनाने का, तो मैंने वापस वही यूज कर लिया। मेरे को हैबिट है स्टेटस और स्टोरीज में डालना। किसी एक XYZ का मुझे फोन आकर आ रहा है कि प्लीज दिस हैज बीन पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट एंड मनी फॉर आवर फर्म एंड यू हैव टू रिमूव दिस डिजाइन। और वो जब डिजाइन मैंने बनाया था तब मेरा ख्वाब कैचर्स रजिस्टर्ड नहीं था, बट हाँ वो मुझे पता है, मेरे पास उसका सारा ओरिजिनल CDR फाइल्स है, ये है। मैंने बोला भैया तुम ये बताओ कि कहाँ से कहाँ तुमको कैसे मिल गया ये ओरिजिनल। एंड आई हैव सेंड हिम 6 to 7 सेम माय डिजाइन, 6-7 जन का कॉपी किया हुआ, दूसरा फर्म का नाम लिखा हुआ। मैंने उसको पिंटरेस्ट से स्क्रीनशॉट लेके भेजा। मैंने बोला ये मैंने कब बनाया था, जब मैं कुछ भी नहीं कर रही थी तब मैंने बनाया था। आज मैंने उसमें खाली एक एनिमेशन मुझे आ गया है, तो मैंने थोड़े बल्ब्स लगा के मेरे स्टेटस में डाला है, आई विल नॉट रिमूव। तुम जिसको ग्राफिक कंपनी को दिया है तुम उसको पूछो उसने कहाँ से लिया है। एंड देन उसके बाद वो मुझे सॉरी, अपोलॉजी लेटर, ये वो उसके ग्राफिक कंपनी के साथ जो भी हुआ मुझे नहीं पता है उसके बाद, बट खुद की डिजाइन खुद को हटाने को बोलते तब मुझे बड़ा मजा आया था कि वाह मेरे डिजाइन चोरी हो। डिजाइन की yes. बात कर रहे हो, मेरी कविता कब मैंने मॉम्सप्रेसो में डाली है, उस पे लोग अपना नाम, मेरे को हावड़ा से किसी रिलेटिव ने भेजा कि दीदी आपकी ये कविता हमारे पूरे ग्रुप में घूम रही है और नाम बदल रहे हैं। हम बोले बढ़िया, अच्छा। So yes, copy of designs and art is one thing which is really challenging, but जो हैंड वर्क आप करते हो ज्योति जी, वो तो कोई कॉपी नहीं कर सकता है। नहीं, वो नहीं कर सकता। मेरा खुद का कारपेंटर मेरे डिजाइन्स दूसरे घरों में बना हाँ, so that is I think that is taken nowadays कि सारे बुटीक का डिजाइन वो कारीगर लोग लेके दूसरे के घरों में जाते हैं एंड दे सेल। और या तो फिर ऐसे बोलते इंस्पायर्ड। This is the right word actually for art thing. This is inspired by crop catchers. That's it. First copy, second copy, ये सब तो you know what, Kavita, I think that is just a part and parcel of this industry. yes. वो किसी भी इंडस्ट्री में है, whether you're doing graphic designing या It is there. interior designing. बस हम लोग क्या है कि because we are doing mandalas and all, maybe somebody may not get the pattern exactly, but अगर हम लोग भी उसको Pinterest पे डिस्प्ले कर रहे हैं, अगर हम भी उसको सोशल प्लेटफॉर्म
So let us assume that this is a part and parcel of it. Yeah, You yeah. can't Mhm. back away from it. Yeah, and I think दुनिया में कहीं दूसरे कोने में कोई आपका देखकर बना भी रहे तो और क्या चाहिए? और और क्या क्या चाहिए? चाहिए? You want और that क्या? only, na? You want people to get Exactly. inspired And from somebody you. getting inspired by you, what more do you want? I mean, that's the best. Absolutely. So coming I to the think, last question of the session, what is the next step for each of you? So again, starting from Jyoti. मेरा तो स्कूल खुलने वाला है, उसके बाद नो टाइम. मैंने कर लिया लॉकडाउन में ऐश, जो बट करना आई था. डू हैव अ लिटिल कॉर्नर ऑफ माय, घर पे तो है ही जैसे, स्कूल में भी नाउ आई हैव अ लिटिल रूम. सो बट स्कूल का काम बहुत ज्यादा होता है, एंड आई एम नॉट जस्ट द आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ऑफ द स्कूल. आई होस्ट देयर लिट फेस्ट, क्विज, स्पेल बी, एवरीथिंग. सो दैट्स लाइक अ लॉट ऑफ वर्क फॉर मी. Hmm. बट ठीक है, आई होप टू कंटिन्यू. और अब वो जाएगा नहीं, बिकॉज पूरा घर लॉकडाउन में और कुछ हुआ है नहीं हुआ है, Amazon के डब्बे और दुनिया भर का स्टेशनरी से भर गया मेरा घर. आई हैव टू इवेंचुअली यूज इट. Use it. तो Absolutely. as long as the school is not open, I'm happy and I am still doing it. It'll take a little backseat once the school reopens, because that is my main priority, and that is my job. Okay. So me, that is the scenario. Manisha, what is your plan? Plan is to take my Naisha one step up, bulk orders, little bit of event thing, little bit of on-site thing I started before lockdown. Like किसी के बेबी हुआ तो उसका बेबी शावर का पार्टी, या फिर बेबी घर आते तो उसका डिकोर या उसका चीज मैंने So लिया. on site you have already started. I did, but during lockdown again it is closed. तो उसको start करके वो एक रुक गया था, तो उसको फिर से स्टार्ट करना. एंड इससे ज्यादा ऑर्डर जो मैं ले रही हूँ 250-300 पीसेस के ऊपर के ऑर्डर के लिए नायशा को एक नया एड्रेस देना. माय होम कैन नॉट बी नायशा का एड्रेस. Yeah. You need a warehouse or someplace. No, I need proper workshop area workshop. for Naisha along with the warehouse, because घर से मैं और उसको नहीं कर पा रही, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है. तो न्यू एड्रेस फॉर नाइशा. Bhavika, what is your next plan? So my next plan, I think basically I'm right now on my journey of coaching with Khwab Catcher as a graphic designer is doing good. I am having a good recognition and good orders are coming on my way. I'm not able to take care of my page only on that say. तो उसके साथ साथ एक ये मेरा है मन लाइफ कोच, which I'm really enjoying that journey as of now. And along with that एक छुपी सी इच्छा थी बचपन से. जब तुमने पूछा ना तुमको क्या बनना था, तब मुझे बचपन से रेडियो जॉकी बनना था. You should be video jockey, not radio jockey, because your charm is there when we can see you. वो मुझे कैफे से पता चला. So VJ is we will see next VJ Yeah, Tabu. good morning Bangalore. ये बहुत ये किडिश वाली जो एक इच्छा होती है ना बचपन से, एक वो है. ड्रीम, वो वाला है जिसके लिए कुछ मेहनत नहीं कर रही हूँ मैं, बस वो ऐसे सडनली कुछ ऐसे देख लेती हूँ कोई मूवी तो वापस कम तुम्हारी तबू. तुम्हारी सुलू, it will be तुम्हारी तबू. हाँ, that is something very fancy and dream to dream वाला dream है. Like I'm not working upon it anything as such. ठीक है, we'll That's a make you cute dream work. which I enjoy. We'll make you work on that. Okay. Pooja, what is your next plan? Seriously, haven't thought about it. So now we've given you something to think about. Pooja, when you asked for the Yeah. displaying and all ना, मुझे एक idea था कि अगर आप 2-3 जन हो, and these days putting up exhibition is so easy. Initially galleries वगैरह बहुत easily नहीं available होते थे. But nowadays there are so many of artists, they combine, like they collaborate together and 2-3 artists लोग अच्छा एक exhibition रखते हैं. थोड़ा सा media coverage कर लो, 3 जन मिलके भी करते हो तो you can actually do, and it's doable. Small galleries रहती है, वहाँ पे कर सकते हो, and एक अलग ही feather लग जाता है जब आप ऐसा कुछ करते हो art exhibition. Bhavika, you got us to the next topic, which Pooja and We were over the phone. She wanted to have an exhibition for everybody at cafe. Oh wow. Like cafe artists का exhibition. So she also has a place of her own जहाँ पे कि अपने लोग कर सकते हैं वो exhibition. But then we Wow. discussed that we
we should start with the online exhibition first of all the cafe artists to see the response, and everybody will get an experience also कि क्या चलता है एग्जीबिशन में, किस तरह से हमको प्रिपेयर करना है, and all that. And we can include everybody from different cities also if we are online, बिकॉज अगर ऑफलाइन करेंगे तो फिर हमें सिर्फ कैलकाटा वालों का करना पड़ेगा, या फिर दूसरे से मंगा के कैलकाटा में वी कैन डू इट. But that was the thing which we were planning to announce it at the end of the Oh, session. sorry, I didn't knew. मुझे ये आया. See how You it just was. spoke. Yeah. हमारे So, दिल की बात Dil बोल ki दी. baat, so this is so before we announce anything, let me ask Suchi also. Suchi, what next for you? But I am in the same page with Pooja. मेरे को ना, मैं इतना फ्यूचर का सोच के कभी कुछ हुआ ही नहीं. जिसका ज्यादा प्लानिंग कर लिया वो तो बिल्कुल ही नहीं हुआ. अच्छा. Obviously to scale up is definitely a thing. इसको और proper तरीके से to So hire which one would you like to focus on, interiors or graphic designing? I think interior is my first love. First love. I think. Because actually उसमें मैंने पापा से लड़ाई की थी. My father was absolutely against me studying interiors. Yeah. लिए लगता है इतना ना, अरे लड़की हो के अब मिस्त्री लोग के साथ काम करोगे, एंड ये जाओगे साइट पर, रात को जाओगी, भी जाना पड़ेगा. कैसे लोग होंगे. तो उसके लिए लड़ाई की है अपने पापा से. मतलब एक तो हस्बैंड से लड़ना तो कॉमन बात है, बट फादर से लड़ने में थोड़ा गट्स लगता है. True. डेफिनेटली. तो मैं और स्केल अप करना चाहती हूँ basically. Okay. So any collaboration opportunities which you all see कि as being artists आप लोग कैसे एक दूसरे के साथ collaborate करके grow कर सकते हो? Definitely marketing each other's product is definitely one, but what are the other things where you can collaborate? कुछ है दिमाग में idea? मनीषा जी के. मनीषा जी तो कोलैबोरेट कर चुकी है, ऑलरेडी कर रही है वो. See, मैं सूची के साथ ऑलरेडी कर चुकी, और आगे हम लोग बहुत कुछ साथ में प्लान करते ही रहते हैं जब बात करते हैं. मैं ज्योति जी और जो पेंट कर रहे हैं उनकी पेंट के साथ आई कैन क्रिएट मेनी थिंग्स. Yes. जैसे मैंने उनकी जैसे अगर आप पॉट पेंट करके दे रहे हो तो उन पॉट्स को मैं अपने प्लेटर में लगा के बहुत आराम से सेल कर सकती हूँ. मतलब बट उसके लिए क्या होता है, हम लोगों को प्राइस एंड ऑल पे थोड़ा वर्क करना पड़ता है. तो Obviously, yes. दैट वे वी Obviously. कैन ऑलवेज वर्क. लाइक आपके अंदर जो चीज है उसको मैं अपने चीज के साथ मिक्स करके और अट्रैक्टिव बना के अगर एक कंप्लीट गिफ्ट किसी के लिए कर सकती हूँ तो नथिंग लाइक दैट. Very nice. So yes, those who do not have that capability of selling their products, maybe they can connect with the people like Manisha in cafe, who can take up your product in their product, arrange it, and combine it for ready to be sold. So that can be Once one. you will have that confidence that you can do it, take up at your own, till the time you can collaborate with me again, you do your independent thing. Not an issue. इसमें really nice. एक चीज मैंने जो लॉकडाउन में की है, आई डिड सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट. आई एम डूइंग फॉर अराउंड 10-12 क्लाइंट्स. Correct, yes. एक ग्राफिक डिजाइन करना इज समथिंग डिफरेंट. जो मेरे को ऐसा लगता है कि एक कोलैबोरेशन है जो हुआ वेरी गुड विथ हैंडलिंग सोशल मीडिया. मतलब जैसे से सपोज माय सिस्टर, आई नो शी इज वेरी गुड एट सोशल मीडिया, इंस्टा, फेसबुक, कैप्शन लिखना, हैशटैग्स डालना. आई एम वेरी बैड एट इट. तो इस तरह का कोई भी कोलैबोरेशन जिसमें आप एडवर्टीजमेंट कर सको, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट. देयर इज अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट. एंड ये मतलब खुलते ही जाएगा. बिकॉज अभी ऐसा है कि हर आदमी, मतलब छोटा से छोटा फर्म है, छोटा से छोटा काम है, बट आप उसको सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज कर रहे हो. Correct. तुम कुक्स कर रहे हैं, सब कोई कर रहे हैं. तो वो एक कोलैबोरेशन है जो मतलब इफ यू आर नॉट क्रिएटिव इन टर्म्स ऑफ इफ यू डोंट नो हाउ टू डिजाइन, बट स्टिल यू हैव अ नैक ऑफ क्रिएटिविटी and you can do social media, so that can be a great collaboration. Like for bakers and chefs, we created cookbook. For artists, we are planning the exhibition. I hope everybody will take that opportunity and be part of it. And online exhibition say we are planning to start once, and Pooja will take the lead as she proposed, and then those who are ready to help her, and you all can form a team, and then we can take it forward. So I think this might be the starting point
for all the artists to showcase their work to the world, and then probably more collaborations can happen, and the home painters can be professional painters, or professional creative artists. So let's begin with the exhibition thing, and if any of you have more suggestions or more ideas for collaboration or growth, please pour them in. We have a group of artists in cafe, so most welcome to share your ideas and creative thoughts with us for growth and collaborations. Any questions from audience? We haven't received a single question. We didn't give them a chance to ask anything actually. So Shweta, I want to ask one. yeah, Tina. Yes. Actually, this lockdown also gave me an opportunity to explore myself. So, yeah, I have also started doing mandalas, and and not only mandalas, a lot of art which is driven by mandala and Zentangle. So again, I'm a very shy person that way, is that I am not able to post what I'm doing. I've already got it clicked also professionally, but it is still in my mobile. I'm not posting it anywhere. So So post like, it in some other page, no, Tina. Create another page for just posting your artwork. It should not be your personal page. yes, that I think I should give a name, a different Yeah. name, and then post it through it सबसे maybe. पहले नामकरण करना चाहिए बच्चे का, नहीं तो और आपने अभी तक कैफे आर्ट में भी नहीं डाला है ना? You should have put I there never at knew least. that group called Cafe Art. I never knew that. so we'll add you to that. Yeah, and Everybody- actually, I was also looking for this opportunity that how can I, showcase what I'm doing, because until unless I'm doing that, I am also not very sure that what I am doing is being liked by Liked. somebody. Yeah. Yeah, and actually, it is sellable or not. Even that is a big question, because few of my arts I had given for birthdays and like that. The response was very very good. मतलब मैंने अभी gift किया, within 15 minutes it was on the wall, and I got a click that it's already on the wall, like that. Yeah. But still, until unless you do it professionally and you get that proper review that True. what you're doing is good or not, I feel very scared. I don't feel that gut to put it on the media, or I don't So know. the best thing is you create another page for your art. Don't Mm. post it on your personal page. So And I you think will that get the real response. Yeah, Jyoti. And I think that is what we were talking about. First and foremost, you have to be confident enough to exhibit it to the world that, what I have done is like, fine work and I'm ready to go ahead with it. True. So, why don't you start? You must be in some of the groups, start posting there, and then you will get the confidence, when your good comments will keep coming, and, people will start appreciating your work. Definitely. The closed group is very cooperative or very appreciative of what I'm doing, but one is your closed group and the other is the other world. So it's like it's important to go into that Gotcha. world also. So here everybody is good with it, everybody is liking it, appreciating it. But I mean, maybe I'll share in the cafe art group. Maybe that Yeah, time I'll get a definitely. response of how it Tina, is going. you can exhibit your work in online shopping. There are many pages like Online Network, Women Network, Woman Entrepreneur, like Facebook pages. There you can exhibit your things and create inquiry. Tell them the prices. That way you will understand that people are loving your work professionally also, or just the gifting, they are happy with the gift things. Paying for art is again a thing कि लोग मुफ्त में मिले तो बहुत अच्छा लगता है, बट पैसे देके खरीदने में लोगों को तकलीफ होती है. तो जो आपके जो शॉपिंग के लिए जो कुछ नेटवर्क पेजेस हैं, आप उन पे आप शुरू में डाल के देखो. Tina, you are at a very happy place here. This is one place you will get enough boost and you will be like, out of the world. Don't worry. Start posting in cafe, either art cafe, art club, and then confidence you will get here is next level. You will post Oh, everywhere. that's what I'm saying. Then you start posting everywhere. Yeah, this group is a better cozy place to post first, I guess. No, but what I will suggest is you must create a page. Yeah, that is must. Because I think I as a person, I won't be doing it until it is in my name. I will not be putting in any of the Yeah. shopping
also. So तो मुझसे better शायद to नहीं होगा. वो करना भी नहीं चाहिए. Create another page so that people also know that you know this person is doing it professionally. आप अपना personal में डालोगे तो people will just praise and you know move ahead कि अच्छा हाँ आप मतलब she's done it very nice, बस very nice, very good, and all those comments you will get. But if you are looking to convert it, I then have, like Manisha was always telling, I have also modified mandala into like so many other items and put it in different ways. Everything is coming up good again, and I think I'm getting the media to See, show what I'm another doing. thing is like they all said that artist को अपना art हमेशा अच्छा ही लगता है. So Again, you very should also recheck whether you are in that zone or not. yes, of course. I have never picked up a pen or pencil in my entire life, and this was the time when I had time to sit down and see, and it Yeah. was amazing, and it was unbelievable that I can do this, you know. So even rejection or maybe okay No, comments are also rejection कुछ नहीं होता है art में. Art is something, you know, you need the right people to like, who will like your art. I There think might it's in be 10 who will eyes. not like, there might be another 10 who will like a lot. Exactly. So it is very subjective. And you know basically. what? If at any place you feel like, you know, अगर आपने डाला भी है, and like, you know, if at any place, if somebody feels you can improvise on it, you know, there are people who will offer you suggestions also. But then again, you know, you have to be open to take suggestions. So Yeah. it works both ways. It works both ways, you know, and it's going to really boost your confidence. And start putting it on our cafe group and all. You see, you'll be ready to Yeah. go. Be a part of the art club first, art cafe first, and from there you will take it ahead. Sure. इसमें I wasn't aware. Good, I attended this session and came to know about that art group also. Yeah. Yeah. ठीक है, इसमें आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग. Yeah, Suchi. तो अपने सोचते हैं कि कैसा रिएक्शन आएगा. मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ. मैंने जो फर्स्ट से सपोज विजिटिंग कार्ड डिजाइन किया था, आज मुझे वो खुद इतना बुरा लगता है कि ये मैंने किया था. Obviously, you grow. Exactly. वो जो है वो तो सोचो ही मत. आई मीन ग्रोथ विल कम इवेंचुअली. वो अपना खुद का Absolutely. उसको आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आज से 2 साल बाद वो हमें इतना Exactly. That's so true. मैं अपने खुद के मामा जी के घर जब जाती हूँ तो मेरे को हंसी आती कि ये मैंने बनाया था. हे भगवान, क्या किया मैंने अपने मामा के साथ. बोल मत देना उनके सामने कभी. ये तो सोशल मीडिया में पब्लिकली बोल रही है, इसका अलग से बोलने की जरूरत ही नहीं. Suchi, in fact, I wanted to get in touch with the interiors of the क्या group बना रही, also. बट सामने वाले को वो बहुत पसंद आती है. एंड इफ क्लाइंट इज हैप्पी, फाइन, लेट देम टेक इट. Let them take. I was also wanting to get in यार touch with सच the में interiors एंटरप्रेन्योर हो of the गए हो, ये cafe. तो समझ में आ गया. Sorry, Tina. Interior Yeah, designer. actually, I was also wanting to get in touch with the interiors in the cafe here Suchi. because I was making a lot of different happy thought frames and different flower print frames. Yeah, so here comes the collaboration part. Definitely. Yeah, so Suchi, please post your number in the group in the section B. Tina is in section B. Okay, I'll do that. Yeah, because us being a very small artist, we can put it into budget also that Artists are never small. Yeah, ऐसे Artists बोलो तो market are नहीं always unaffordable, never affordable. Yes. market नहीं खराब करो. We are very you know Expensive. के भैया हम लोग. Exclusive. You have to say exclusive, not Exclusive. दोनों exclusive. अपनी टैगलाइन बना लो टीना की, हैंडमेड चीजें जो होती हैं वो आप हैंडमेड चीजों में सिर्फ सामान नहीं ले रहे होते हो, आप उस आर्टिस्ट की मेहनत, उसके इमोशंस, हिस्सा लेके जा रहे हो. मेक इट योर टैगलाइन, देन आपको कभी भी स्टॉक नहीं लगेगा. Manisha. So, on this note, let us close the session. A fantastic, creative meet and collaborate session with all 5 panelists. Sorry, Bhavika, to push you on the other side of the table today, because I thought नहीं. that is the place where you belong to rather than on this side, because you being the most creative person I know around me, definitely you belonged to that panel. Thank you. And Thank you so much. hats off to all the artists who have taken this challenging career ahead, because every day you have to create something new. ऐसा मतलब ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि ये बन गया और आप उसी को फॉलो करते जा रहे हो. एवरी डे, एवरी मोमेंट यू नीड टू क्रिएट समथिंग न्यू विच इज लाइक्ड बाय अदर्स.
खुद को तो पसंद आना ही चाहिए, दूसरों को भी पसंद आना चाहिए. So it is actually one of the most challenging careers, and I think women do full justice to it with their heart and soul, always being creative. And I'm glad to have you all at Cafe, and always there to collaborate with any other member if you feel that this will help you boost your business or other person's business. Please feel free to connect with any of us, and we are always there to collaborate and help you grow. Can I Thank just you. something? Yeah, yes, Jyoti. Before we close, Yes, I'm yes. really in awe of you, Kavita. I'm really in awe of you. हम लोग तो चलो ठीक है, we are here to sell our products and or we are here to tell We people all are. we are making or doing whatever, but really hats off to you. I mean, every time you post something, I may not have attended most of your sessions because वो time पे मेरा भी कुछ class चलता रहता है. But really, you know, I'm in awe of you, and there's nobody to replace you. Oh, You're just way above everything. thank you And so much. to keep a group running, and not only one group, sub group. ये तो मतलब really, I mean, we So should much learn to collaboration. learn na, so much to learn from each one. Why should I leave that opportunity? So जैसा सुचि ने बोला ना, मुझे भी no बोलना अच्छा नहीं लगता है. So चाहिए, whenever but there is an opportunity, I try and grab it. कि let's learn something new. We have all learned so much during this lockdown thanks to Cafe and you, Kavita. yeah, really, So much. Yeah, Cafe So much. has actually मतलब लिखने taught बैठेंगे us. तो हाँ. And I'm glad that collaborations are happening. जैसे Yeah. Manisha ने बोला, she's working with Suchi. Suchi has also worked with other members of Cafe, and it's actually that was the thought behind idea. creating such a platform कि हम लोग एक दूसरे को help करें grow करने में और साथ में खुद भी grow. So excellent, all of you. Hats off, and let's grow together. Thank you everyone for joining in. Thank you. Thank you so Bye much. bye. Bye. Bye bye. ग्रुपी हो Bye-bye. गई? हाँ, छुट्टी हो गई. नहीं, ग्रुप पिक्चर. Oh, groupie ho gayi. So now you all can please switch on your videos. I'm sorry, we had to ask you to switch off earlier. Ready? Smile. Any more first? ऐसा वाला. ऐसा वाला. ज्योति तो इतना रेडी हुई हो, अभी कैसा वाला भी स्माइल दो. ये मैं एकदम लिपस्टिक पाउडर लगा के बैठी. Lipstick powder. So ready? 1, 2, 3. Here we go. Thank you. Bye bye. 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 Bye.